Good morning, dear students. Welcome back to our online class series. Today, we are going to start studying a new poet. You can see his picture on the screen. He is William Blake. His two poems, London and Tiger, are prescribed in our syllabus. So, we will see those poems one by one. But before we start reading those poems, explaining those poems, first we will see the background of the poems as well as the introduction to William Blake. So let's begin. William Blake was an English poet and painter and one of the most important figures of the Romantic Age. रोमांटिक एज जो इंग्लिश लिटरेचर की मानी जाती है, रोमांटिक रिवाइवल एज एक वास्तव में उसको कहते हैं, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज जैसे पोइट हुए हैं, उनमें इनका भी नाम आता है. He has been voted 38th in a list of 100 greatest Britons in a survey by the BBC. He was highly imaginative during his lifetime. Blake was considered to be eccentric and even insane by most people. He was not considered as a normal human being. Most of the person considered him insane because of his visionary nature, because of his imaginative nature. और उसकी पेंटिंग्स भी ऐसी हुआ करती थी कि लोग उसको पागल कहा करते थे. He has only been recognized and appreciated after his death, and most of his life he lived an obscure life, and he was not popular during his lifetime. After his death, he was recognized and he was considered one of the greatest poets of English language. He was born in London in 1757 and died in London 1827. As a child, he left school at the age 10 and was educated at home by his mother, though later on he was admitted in a drawing school where he learned engraving, drawing, painting. His source of living, his source of income was engraving. He was engraver. वो उत्कीर्णकर्ता के रूप में कार्य करके अपना जीवन यापन किया करते थे. कागज़ पे, लकड़ी पे, पत्थरों पे जो उत्कीर्ण कला करने की कला है, पेंटिंग उत्कीर्ण करने की कला है, चित्रों को उत्कीर्ण करने की कला है, उसके द्वारा वो अपना जीवन यापन किया करते थे. His best known work is perhaps the poem Jerusalem, written in 1804. The poem was later set to music and become a hymn. Today it is one of the most widely played of all songs. और उसकी जो कृतियाँ हैं, उनकी जो बुक हैं, उनमें जेरूसलम बुक बहुत प्रसिद्ध है, जो काफ़ी पॉपुलर है. ये आज के समय एक हिम बन चुका है, एक भजन जैसा बन चुका है. His other poetry books are the Songs of Innocence and the Songs of Experience, the Marriage of Heaven and Hell and Milton a Poem. ये उसकी खास कृतियाँ मानी जाती हैं. One special thing about Blake I would like to share with you. Blake claimed to experience visions throughout his life. पूरे जीवन ब्लेक है वो सपने देखा करते थे, विजन उन्हें आया करते थे. When he was 4 years old, he screamed when he saw God put his head to the window. जब वो 4 साल के थे तो एक बार वो जोर से चिल्ला के उन्होंने कहा था कि देखो उस खिड़की से भगवान है वो देख रहे हैं. At the age of 10, he saw a tree filled with angels, bright angelic wings, bespangling every bough like stars. और लगभग वो 10 साल के थे तब उन्हें ऐसा कुछ सपना आया, ऐसा कुछ आभास हुआ जैसे एक पेड़ है उस पे एंजल्स ही एंजल्स बैठे हुए हैं और वो सारे तारों की तरह चमक रहे हैं. When his brother Robert
with whom he was very close, died, Blake saw his released spirit ascend heavenward through the matter of fact ceiling, clapping its hand of joy. और जब उसके भाई विलियम ब्लेक के भाई रॉबर्ट की डेथ होती है, वो उसको बहुत चाहते थे, वो दोनों भाई बहुत ही क्लोज थे। तब भी विलियम ब्लेक को एक विजन आता है, एक सपना वो देखते हैं जैसे उनके भाई की आत्मा है वो ऊपर उठ के ताली बजाते हुए छत से होती हुई बाहर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, ऐसा उन्हें आभास हुआ था। तो ऐसी बातें कोई करेगा तो निश्चित रूप से उसे लोग पागल ही समझेंगे। तो कुछ ऐसा उनका जीवन था विलियम ब्लेक का, इसलिए उनको उनके जीवन में लोग पागल समझा करते थे। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद में लोगों ने उनकी कीमत को पहचाना, उनके टैलेंट को पहचाना, उनकी कविताएं, उनकी पेंटिंग्स, उनकी इनग्रेव की हुई चीज़ें बहुत पॉपुलर हुई और आज भी हम उनको पढ़ते हैं, देखते हैं। Now let's move on to the poem London that we are going to read today. The poem London has been taken from his book Songs of Experience. It reveals poet's feeling towards the society in which he lived. England in the 80s became very oppressive. The government of the monarchy of England became very oppressive during the 80s and it was scared of the French Revolution. उस वक्त फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा था फ्रांस में, तो उसको देख के इंग्लैंड की गवर्नमेंट है वो काफ़ी डर गई थी और वो काफ़ी तानाशाही हो गई थी और लोगों पे अत्याचार करने, अलग अलग प्रकार के चार्टर पास करना, कानून पास करना तब की एक डेली रूटीन हो गई थी। Laws began to be imposed which restricted the freedom of individuals, और ऐसे कानून पारित किए जाने लगे जो लोगों की स्वतंत्रताओं को बाधित करते थे, उन्हें गुलाम बनाते थे। At first Blake loved London, but after the French Revolution the British government began to oppress the civil democratic activities, making London quite different from before. शुरू में ब्लेक है वो लंदन को बहुत पसंद करते थे, उन्हें बहुत अच्छा शहर लगता था, लेकिन जैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित होकर वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे कानून पास करने शुरू कर दिए जिनसे लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन होता हो तो उन्हें लंदन है वो काफ़ी दुखी जगह लगने लगी। Thus he shows a negative picture of London and offers social criticism of 18th century इंग्लैंड। तो इस कविता में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि 18th सेंचुरी में लंदन की वास्तविक तस्वीर कैसी थी, लोग कैसे पीड़ित थे, लोगों का दमन किया जा रहा था, वो कैसे दुखी जीवन यापन कर रहे थे, किस गरीबी में उनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था, ये अपन इस कविता में देखेंगे। An aristocratic acrostic can be found in the third stanza. The word here is spelled out in the first letters of each line. This acrostic is foreshadowed in the last word of the second stanza. कविता हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक एक्रोस्टिक वर्ड भी मिलने वाला है हियर, जो थर्ड स्टेंजा आएगा उसके उसके हर लाइन का पहला अक्षर मिलके एक एक्रोस्टिक हियर वर्ड बनता है। बहुत ही शानदार स्टेंजा है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। Further talk about London. London is among the best known poems by visionary poet William Blake. ये उसकी खास कविताओं में से एक मानी जाती है जो आज भी पढ़ी जाती है। The poem describes a walk through London. ये समरी अपन देखते हैं इसकी। London, which is presented as pained, oppressive and poverty-stricken city in which all that is speaker finds is misery. इस कविता में हमें दुखी लंदन की तस्वीर है वो विलियम ब्लेक प्रस्तुत करते हैं, किस प्रकार लंदन के निवासी दुखी हैं, किस प्रकार उन पे अत्याचार किया जा रहा है, कैसे वो गरीबी से पीड़ित है और चारों ओर दुख ही दुख उसे दिखाई देता है। इट प्लेसेज पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द साउंड्स ऑफ लंदन विथ cries coming from men, women and children throughout the poem. इस कविता में हम देखते हैं कि लंदन का हर कोई निवासी है, जो भी मध्यम वर्ग से नीचे या गरीब तबके के हैं वो सभी दुखी हैं,
छोड़ के एरिस्टोक्रेटिक पीपल को, रिच पीपल को, इंडस्ट्रियलिस्ट, उस वक्त इंडस्ट्रियलिज्म भी शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था इंग्लैंड में। तो वो तो सुखी थे जो धनवान लोग थे, लेकिन बाकी जो भी लोग थे वो सारे दुखी थे। तो वही पिक्चर हमें यहाँ देखने को मिलती है। The poem is a part of a response to the Industrial Revolution, but more than anything is a fierce critique of humankind's failure to build a society based on love, joy, freedom and communion with God. इसमें ब्लैक है वो इस चीज़ पे ही पछतावा करते हैं कि हम ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर पाए जो प्रेम पे आधारित हो, आनंद पे आधारित हो, आज़ादी पे आधारित हो, धर्म पे आधारित हो। हम ऐसा समाज स्थापित नहीं कर पाए, ऐसा वो इसमें बोलते हैं। अगर हम इसकी थीम्स की बात करें तो इसमें ये इसकी मुख्य थीम है, निकल के आती हैं। लैक ऑफ फ्रीडम, पहला गुलामी, वहाँ के जो गरीब तबका है उसे गुलामी भरा जीवन जीना पड़ रहा है। सोर्सेज ऑफ लैक ऑफ फ्रीडम, डाउनफॉल ऑफ लंदन, लंदन का पतन, ऑपरेशन ऑफ अर्बन लाइफ, विशेष तौर से अर्बन पिक्चर, यहाँ लंदन है वो एक सिटी है तो अर्बन पिक्चर प्रस्तुत करता है। तो अर्बन लाइफ कैसे दमनकारी हो सकती है, अत्याचार से भरी हुई हो सकती है, ये अपन देख सकते हैं इस पोइम में। ऑपरेशन बाय द एरिस्टोक्रेसी, या फिर अपन कहें कि जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल हैं, हाउ दे ऑपरेस, हाउ दे एक्सप्लॉइट द लाइव्स ऑफ द पुअर पीपल, ये भी अपन इसमें देखेंगे। तो ये इसकी थीम है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पोइम। फर्स्ट स्टेंजा। सीन कुछ ऐसा है। द पोएम इज वॉन्डरिंग थ्रू द लंडन एंड ही सीज द पुअर and the miserable condition of the poor people of the London, and he expresses the sorrows of those people in this poem. दृश्य कुछ ऐसा है कि कवि है वो शाम के समय लंदन में घूम रहा है और घूमते घूमते वो लोगों की दयनीय स्थिति, दुखी लोगों को वहाँ पे देखता है और उनके दुख को वो इस कविता के माध्यम से हमें बताता है। लेट्स बिगिन। I wander through each chartered street, near where the chartered Thames does flow, and mark in every face I meet marks of weakness, marks of woe. In this first stanza, the speaker provides the setting and tune of the poem. The first stanza reveals that the speaker is walking down in a street of London. He says that he wanders down each chartered street. He says that he is wandering in the dirty street of London. Chartered here has two meanings. One is dirty, the second is law bidden, that has been bidden by the laws. That term wander gives some insight into the speaker as well. He appears to be not quite sure of himself and a bit misguided, if not entirely lost. The use of the term chartered also suggests that the street he walks are controlled and rigid. जो चार्टर्ड वर्ड यूज किया गया है वो ऐसा कहते हैं कि ब्लेक ने बाद में इस वर्ड को चेंज करके डर्टी कर दिया था। बट इस बात में कितनी सत्यता है वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ उससे अर्थ ज़रूर निकलता है। डर्टी अपन अगर करें तो लंदन की गलियां हैं वो काफ़ी गंदी गलियां बन चुकी हैं, और जो टेम्स रिवर है जो लंदन में बहती थी, जो काफ़ी शुद्ध थी, वो भी डर्टी हो चुकी है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहाँ पे औद्योगिकरण काफ़ी हो चुका है, तो निश्चित रूप से जो औद्योगिक वेस्ट है वो टेम्स रिवर में डाला जाता होगा, तो वो ऐसी डर्टी हो गई। और जो स्ट्रीट है वो भी डर्टी हो गई, वहाँ पे सफाई का कोई ध्यान नहीं है। तो पहला अर्थ तो इसका ये है। और दूसरा है चार्टर्ड स्ट्रीट से मतलब ऐसे है कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए हैं जिसके द्वारा उन्होंने लंदन को गुलाम बना दिया है, या यूँ कहें कि लंदन को कुछ उद्योगपतियों के हाथों बेच दिया है। तो वो चार्टर्ड हो गए। चार्टर्ड यानी द थिंग दैट हैज बीन चार्टर्ड, और ए थिंग
ऑन विच ए चार्टर हैज़ बीन इश्यूड, ऐसी चीज़ जिस पे कोई कानून पास कर दिया हो या कोई चार्टर पास कर दिया हो, तो उस सेंस में ये ऐसे है। टेम्स रिवर है, जैसे उसको भी बेच दिया हो, उसको भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको बेच दिया हो, तो वो वहाँ पे इन दो अर्थों में यहाँ अपन इसको समझ सकते हैं। He is not walking in a free, open field but a confined, rigid, mapped out area. The speaker will expound upon this idea later on in London. As he walks, he notices something about the faces of the people walking by. There seems to be the marks of weakness in them all. He describes their faces as having weakness and woe. This sets up the tune as melancholy. The gloom and the sadness seems to seep from the speaker's voice as he describes the passerby. And when William Blake is wandering in the street, the speaker is wandering in the street, he meets people, and all those people are miserably sad. They are weak because of overwork, and they are poverty stricken, and they are full of sorrow. वो सारे के सारे दुखी हैं, उन सब के चेहरे पे विलियम ब्लेक को दुख दिखाई देता है। तो वो कहता है कि जब मैं लंदन की गलियों में घूमता हूँ, चार्टर्ड स्ट्रीट्स में घूमता हूँ, जब टेम्स रिवर के पास की गलियों में मैं घूमता हूँ, टेम्स रिवर की नदी के किनारे जब मैं घूमता हूँ, तो वहाँ मुझे हर व्यक्ति जो दिखाई देता है उसके चेहरे पे मुझे उदासी, दुख और कमजोरी दिखाई देती है, ऐसा वो बोलता है। In this class we are going to do only this first stanza. In the next class we will do the next part of the poem. Till then, thank you very much.